बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम my dear students. Hope that all of you would be fine by the grace of Almighty Allah and you have a good weekend too. My dear students, in the last class we were discussing users and internal and external users. I remember, and when I watched the video, so you guys were correct. My voice was not audible in the last few minutes, so I decided to that I should review this slide and then we will move forward, inshallah. My dear students, in this slide, we are talking about users and their need for accounting information, what they want, what they are expecting as a user of accounting information. And in the first heading, we have word creditors or lenders. I will try my best that if any new word comes, so the word should be very much clear. Its meaning should be clear to everyone having science background. So creditors are the persons. Creditor is a person who sell goods to us on credit. In simple words, उधार पर जिससे हम सामान खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में माय डियर स्टूडेंट्स वी कॉल हिम सप्लायर टू, SUPPLIER, supplier. Supplier is a person who supply goods to us. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल अबीर साहब। तो मेरे बच्चों, और लैंडर्स कौन होते हैं? लैंडर्स इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं। जबरदस्त मशहूद साहब। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स का दूसरा नाम ट्रेड पेबल। देखिए ना, आप कॉमर्स का बैकग्राउंड है माशाल्लाह, अगर तो आप इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं, बट मेरी कोशिश होगी कि मेरे साथ साइंस के स्टूडेंट्स भी बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलें। So my dear students, who are lenders? Lenders are the person, lender are the institute who provide loan to our business. So why they need accounting information? Yes, exactly, Abir. Those who lend money to him, to whom? They lend money to us. They lend money to our business because we are talking. Yes, exactly. So, my dear students, why the creditors and lenders need accounting information of our business? Because they want to assess. Please watch it carefully, read it carefully, because they want to assess whether the business can pay for its goods on credit. वो जो हमने goods उनसे purchase की हैं, either we will be able to pay them in future or not. They want to assess from our accounting records that what is our position. Either we are in profit or either we are in loss. They will judge from our accounting records and then they will decide that they should sell, they should provide their product to us or not. Exactly. Alhamdulillah, all of you are up to mark. So I should move to the next point. Same like this goes to lenders. Before uh, before sanctioning, before approving a loan
to our business, bank or any institute will inquire about our business, and the bank or institute will gather information about our business. And then if the institute satisfies that the business is in good position and the business has ability to pay their loan back to them, then the lender will sanction, the lender will allow, the lender will approve loan to our business. Okay, the next point is shareholders और owners. Why? अच्छा, स्टॉक होल्डर्स और शेयर होल्डर हैं क्या ना? तो मेरे बच्चों, किसी चीज को इग्नोर करना बड़ा आसान होता है, लेकिन बात यह है कि सेकंड ईयर में भी पढ़ना है, सेकंड ईयर में अकाउंटिंग के टीचर के साथ पढ़ना है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी टीचर हो. और अभी इंशाल्लाह इन पीओसी यू आर गोइंग टू रीड इट विथ मिस नाजलीन. When you will study about joint stock corporation, Miss will elaborate who is stockholder, who is shareholder. So in simple words, the owner of the company, the owner of the company is called stockholder or shareholder, because in company, the person who buy the stock, the person who invest his or her money in the company, in return he gets a certificate. That certificate is certificate of ownership, and we call that certificate share. Share is a British word, and the Americans use stock. So stockholder, shareholder is the person who invests his or her money in a which organization? In which organization? In a company. इन अ बिजनेस तो है, लेकिन इन अ कंपनी इज अ बेटर वर्ड. ठीक है, कंपनी में पैसे लगाते हैं ना प्यारे बच्चों, शेयर होल्डर, स्टॉक होल्डर. यस, एग्जैक्टली, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, alhamdulillah, now we are clear that who is the stockholder, who is shareholder. I am very much hopeful that when Miss Nazleen will ask about this word, that anyone knows who is the stockholder, who is shareholder. मुझे पूरा भरोसा है, आई हैव ट्रस्ट कि आप बहुत अच्छे से मिस नाजलीन को ये एक्सप्लेन करेंगे. और कॉमर्स के स्टूडेंट तो कर ही सकते हैं, बट आई विश कि ये साइंस के स्टूडेंट इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें 1 लाइन 2 लाइन में मिस नाजलीन को, ताकि उन्हें भी पता चले, फीडबैक मिले, और उन्हें भी पढ़ाते हुए आपको अच्छा लगे कि कुछ चीज़ें अकाउंटिंग से बच्चे सीख कर आए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो we are talking in second heading, we are talking about stockholder and owners. And when we say word owner, that then it means we are talking about sole proprietorship business or partnership business organization. So these why the owner, why the stockholder is having need of accounting information to make decision in making any further purchase of share or stock or investment, to decide whether to buy, hold or sell shares, to decide whether he should continue business or not, to decide whether he should buy his business, to decide whether he should shut down his business, to decide whether he should extend his business. So these are the things which stockholder will decide when he will get information or through accounting. So I hope, alhamdulillah, all are clear, and we should move to vendors or customers. To assess the staying power of potential supplier and customers. Okay, to decide if they can have profit if they will invest in the company. बिल्कुल ठीक है अमन, right, you are up to the mark. So why vendors and customers need accounting information? Because they, as a vendor, as a customer,
We want to assess, customer want to assess the staying power of potential supplier. What does it mean? Staying power क्या चीज होती है? Yes, I'm going to tell you, my dear. Staying power means कि आपका कस्टमर आपके साथ इन फ्यूचर रहेगा, आप उसे सेल करेंगे या नहीं. अगर आपके पास, इफ यू हैव राइट नाउ, इफ यू हैव 10 कस्टमर्स, तो आप उन 10 कस्टमर्स को एंटरटेन कर रहे हो, और अगर फ्यूचर में आपका एक बड़ा कस्टमर चला जाता है तो आपके लिए उस सामान को बेचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप राइट नाउ 10 कस्टमर्स को एंटरटेन करते हो, तो आप उसी हिसाब से अपनी दुकान में सामान खरीद के लाते रहते हो, और टर्नओवर होता रहता है, सामान आता रहता है, जाता रहता है. बट अगर कोई आपका बड़ा कस्टमर आपसे नाराज हो जाए, आई होप, मेरा ख्याल है, मैं एक बहुत जल्दी से तेजी से एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग में से कुछ लोग तो बहुत तेजी से पिक कर लेंगे, मुझे उम्मीद है. जिन्हें नहीं समझ आए वो मुझसे जरूर पूछें. देखें, हमारा बैंक में अकाउंट होता है. अगर हमारे बैंक अकाउंट में एक हैवी अमाउंट पड़ी हुई हो, माय डियर स्टूडेंट्स, तो बैंक की ख्वाहिश होती है कि हम अपना अकाउंट बैंक में, उसी बैंक में मेंटेन करें. हम किसी भी सूरत उस बैंक से अपने पैसे ना निकलवाएं, ये बैंक चाहता है. समझ रहे हैं आप मेरी बात? बैंक चाहता है कि हम किसी भी सूरत बैंक से पैसे ना निकलवाएं. क्यों? क्योंकि बैंक हमारे पैसे ही से तो ऑपरेट कर रहा होता है. बैंक अपने बिजनेस को हमारे पैसे से ही तो चला रहा होता है. इट मीन्स कि हमारे एक बैंक के लिए हमारा अकाउंट, हमारा बैलेंस बहुत अहमियत रखता है प्यारे बच्चों. बिल्कुल, हमसे पैसे लेके हफ्सा वो आगे लैंड करता है ना, तो हमारा पैसा ही तो वो एक तरीके से रोटेट कर रहा होता है, उसी को तो मूव कर रहा होता है, उसी की मदद से तो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा होता है. ओके, अगर आप थोड़ा सा इस पे क्लियर हैं तो हम वक्त जाया नहीं करते. इसका मतलब है कि वेंडर्स जो हमें सामान प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और कस्टमर्स जिन्हें हम सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों ऐसा. अब देखें ना, आप वेंडर जो है ना, किसे कह रहे हैं हम? जिसे, जिससे हम सामान ले रहे हैं, जो हमें सामान प्रोवाइड कर रहा है वो वेंडर है, और जिसे हम सामान बेच रहे हैं वो कस्टमर है. तो कस्टमर को आखिर क्या पड़ी है भाई? कस्टमर भी तो ये चेक करेगा ना कि मैं जिससे सामान खरीदता हूं, अगर इन फ्यूचर इसका बिजनेस डाउन जा रहा है तो मुझे कहीं और मार्केट में किसी और को देखना पड़ेगा. अगर पाकिस्तान में कोई और नहीं है इनके अलावा तो मुझे बाहर से सामान मंगाना पड़ जाएगा, वरना इनकी दुकान बंद हुई तो मेरा कारोबार भी बंद हो जाएगा. आई हैव टू क्लोज माई बिजनेस टू. इसका मतलब है कस्टमर्स आर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न विथ आवर बिजनेस. और वो किस तरह जाने कि हम अपने बिजनेस में स्ट्रांग हैं या नहीं? उन्हें आखिर कैसे ये बात पता चले? Shiza said, "Sir, kindly tell what the bank uses our money so for, in what business kindly given." अच्छा, देखें शीजा, हम बैंकिंग बिजनेस की तरफ बिल्कुल जाना नहीं है हमें, लेकिन मैंने कहा था ना कि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ. तो क्योंकि मैं आपको बैंकिंग बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि हम ट्रेडिंग बिजनेस को ज्यादा फोकस करेंगे और बैंकिंग बिजनेस के बहुत 5% पूरे सिलेबस में, तो एक आइडिया देने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि बैंक हमसे, जब हम अपने अकाउंट में जाके पैसे रखवाते हैं तो बैंक उस पैसे को आगे लैंड करता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है. और अगर हमने बैंक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोला हुआ है, सेविंग अकाउंट खोला हुआ है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला हुआ है, तो बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट देता है एक सर्टेन परसेंटेज तक. वो बाकी इंटरेस्ट खुद रख के उससे अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज को पे करता है, अपनी जगह का रेंट पे करता है, और जो अमाउंट बच जाती है वो बैंक के ओनर्स को प्रॉफिट की शक्ल में मिल जाती है. इस तरह से बैंक ऑपरेट करता है. ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट ये मैंने सिर्फ बहुत सिंपल बात की. जी बिल्कुल, इन सिंपल वर्ड. कोई भी देखे ना, मैं अगर आपकी बात कर लूं, अगर आपके पास बिल फर्स्ट 5 लाख रुपीज कैश रखा हुआ है और आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है वो 5 लाख रुपीज ना बढ़ेगा, बल्कि करंट मार्केट सिनेरियो में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. आप देख रहे हैं मनी की वैल्यू दिन ब दिन, पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू कम हो रही है, डॉलर की वर्थ बढ़ती है, यानी डॉलर जो है वो एक तरीके से डोमिनेट करता है. तो काम की बात सिर्फ ये है, तमाम देखें हम कहीं और निकल जाएंगे फिर मैं खत्म नहीं कर सकूंगा. काम की बात यह है प्यारे बच्चों
शीजा, आई थिंक आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा बैंक का आइडिया हो गया। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है कि मैं अपना पैसा बैंक में रखवाने जाता हूँ, बैंक कहता है कितने अरसे के लिए रखेंगे, मैं कहता हूँ जनाब 10 ईयर्स के लिए। अब कोई, आप वहां से कोई दूसरा शख्स आता है बैंक में, वो कहता है मुझे 5 ईयर्स के लिए लोन चाहिए, 8 ईयर्स के लिए लोन चाहिए। बैंक मुझे 10% इंटरेस्ट देता है, और जिसको बैंक जो है वो लोन देता है उससे कहता है मैं आपसे 15% इंटरेस्ट लूंगा। तो 5% एक्स्ट्रा लेकर बैंक अपना प्रॉफिट भी रख लेता है, अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज भी पे कर देता है, और हमें भी मजे से हमारा इंटरेस्ट पे कर देता है। और आफ्टर 10 ईयर्स जो है हमारी अमाउंट हमें सिक्योरली जो है वो री इम्बर्स कर देता है, रीपे कर देता है। अच्छा, अब मुझे अटेंडेंस लेने दीजिए, अगर आप सब लोग मौजूद हैं। Forty students are present. Okay, my dear students. So the last point is government agencies to calculate the amount of taxes to be paid. Government agencies क्यों इन्वॉल्व होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को आखिर क्यों चाहिए होता है हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? क्योंकि वो इससे कैलकुलेट करेंगी कि हाउ मच अमाउंट वी हैव टू, द बिजनेस हैज टू सबमिट टू अस एज अ गवर्नमेंट एजेंसी। यानी एफबीआर will decide, FBR will take help from our accounting information that how much tax this business should pay, this business should deposit in FBR. So accounting information, yes, as an income tax, as a sales tax, as a different type of taxes. Okay. So okay, तो my dear students, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, वक्त हमारे पास कम है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको स्टॉप करता हूं, और अब हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं now I am sharing with you PowerPoint presentation. Okay, now you have my PowerPoint presentation, and there's a first word, business stakeholder. Please, please, if anyone who can explain the word business stakeholders. नो फातिमा, बिजनेस शेयर होल्डर नहीं। शेयर होल्डर तो मैंने कहा था कि सिर्फ ओनर होते हैं कंपनी के, दोज हु हैव रिस्क इन बिजनेस, ओनर, बिजनेस ओनर्स, द पीपल हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द कंपनी। डायरेक्ट, Zahra, why you use word direct? Abhi Naeem said investor, they are the people partially owning shares who invest, stakeholder who has interest in the business. Aman, write the correct definition. देखिए, मैंने बताया भी था आप लोगों को, आप इतनी जल्दी भूल जाते हैं। इतनी जल्दी अगर चीजों को भूलेंगे तो आगे मुश्किल होगी चीजों को याद रखना। प्लीज बातों को याद रखा करें बड़े आराम आराम से, इसीलिए कहता हूँ stakeholder are those people who have direct and indirect interest in the business, who have interest in the business. Okay.
अ बिजनेस स्टेक होल्डर इज अ पर्सन और एंटिटी। इसका मतलब है बिजनेस स्टेक होल्डर जो होता है वो कोई जरूरी नहीं इंसान हो, वो कोई बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए भी बिजनेस स्टेक होल्डर हो सकता है। लेट सपोज एक छोटे बिजनेस ने एक बड़े बिजनेस ने एक छोटे बिजनेस को परचेज कर लिया, या उसके कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है वो परचेज कर ली, या एक छोटे बिजनेस ने बड़े बिजनेस में कुछ हिस्सा परचेज कर लिया, कुछ शेयर परचेज कर लिया, तो फिर वो जो है पर्सन नहीं, फिर वो एंटिटी होती है। अ बिजनेस स्टेक होल्डर इज अ पर्सन और एंटिटी हैविंग एन इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ओके, तो प्लीज याद रखा करें, फातिमा आप भी प्लीज याद रखिएगा, और साइंस के तमाम स्टूडेंट्स याद रखें बिजनेस स्टेक होल्डर कौन है, जिनका इंटरेस्ट है बिजनेस की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। ठीक है, शेयर होल्डर नहीं है ये, इसके अंदर शेयर होल्डर भी आ जाते हैं, याद रहे। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल वही वाली चीज है, इससे और क्लियर होगा अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को। आप गौर से देखें जरा, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, कौन है स्टेक होल्डर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बट अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्लाइड। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट कि ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए मेरे बच्चों को। तो इंटरनल में ओनर्स आ गए, मैनेजर्स आ गए, एम्प्लॉयज आ गए, एक्सटर्नल में आ गए कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो हम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन लोग हैं आखिर जिनके लिए हमें इंफॉर्मेशन जो है डिजाइन करनी है, बनानी है, किन किन को इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। उसके बाद स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन नीड, उनकी किस तरह की नीड है, उन्हें क्या चाहिए होगा, किसको क्या जानना होगा बिजनेस के बारे में, ये डिसाइड करेंगे। आफ्टर डिसाइडिंग विच स्टेक होल्डर नीड व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, we will design the accounting information we will design the accounting information system. Either it is manual system or computerized system, it is a software base, or it is based on excel sheet of Microsoft, whatever the way we are using, but we are using a accounting information system. Yes, exactly, मोहम्मद मशहूद। बैंक विल ऑल्सो भी एक्सटर्नल शेयर होल्डर, नहीं है वो, एक्सटर्नल यूजर है। शेयर होल्डर तो वो होता है ना, देखें बैंक तो सिर्फ लोन प्रोवाइड कर रहा है मशहूद। अगर आप लोग मशहूद का सवाल पढ़ रहे हो तो उन्होंने कहा सर बैंक विल ऑल्सो बी अ एक्सटर्नल शेयर होल्डर। हाँ, स्टेक होल्डर, यस स्टेक होल्डर है वो, बैंक स्टेक होल्डर तो है, बट वो कौन सा स्टेक होल्डर है, वो एक्सटर्नल है। ठीक है, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, सिर्फ वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहता है, ताकि वो देख सके कि एबिलिटी है हमें रीपे करने की, और वो हमारी परफॉर्मेंस को मुस्तकिल मॉनिटर करता रहे। इट्स ओके मशहूद, नो प्रॉब्लम माय डियर। ओके, सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बाद अब रिकॉर्ड इकोनॉमिक डेटा अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड इवेंट्स। अब क्या होगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करने के बाद या बनाने के बाद हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इकोनॉमिक डेटा को, यानी ट्रांजैक्शंस को, कहां, बिजनेस की एक्टिविटीज को और इवेंट्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में। इसके बाद प्यारे बच्चों, अब अब स्टेक होल्डर्स के लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनेंगी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या प्रोवाइड करेगा, रिपोर्ट्स। और ये रिपोर्ट्स किन किन के लिए होंगी, ओनर्स, मैनेजर, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। आई होप अल्हम्दुलिल्लाह इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इस तरह का कोई क्वेश्चन, इस तरह के कोई एमसीक्यूज आपसे शेयर करूंगा, तो अल्लाह के हुक्म से आप उसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, और आपको पता होगा कि कौन किस लिए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चाहता है, किस, वाई why a stakeholder need accounting information, and it depends कि which type of stakeholder he or she is, either he is internal stakeholder or external, internal user or external user। ठीक है, तो आप अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि why creditors need accounting information, मुझे पूरा भरोसा है आप बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे वन लाइन में। ठीक है, ये लीजिए मनाहिल, प्रीवियस स्लाइड। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हमने डिजाइन किया, फिर उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। जब रिकॉर्ड हो गई तो अब हमने, मेरा बच्चा, ओके इससे भी पहले वाली ये लीजिए, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, मनाहिल, दिस वन,
In the first step, which slide you want to see, my dear? Business stakeholder. I started from this slide. बस वही थी, बिजनेस स्टेक होल्डर. बिजनेस स्टेक होल्डर के बाद यहां से शुरू हुई है. आइडेंटिफाई इन द फर्स्ट स्लाइड. यस, द डेफिनेशन. A business stakeholder is a person or entity having an interest in the economic performance of the business. मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आप अपनी नोटबुक में, मैंने डे फर्स्ट आपको एक प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें मैंने बताया था कि टेक नोट्स. अब अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं. आप प्रेजेंटेशन को देख के सिर्फ नहीं पढ़ सकते हैं. मैं आपको स्लाइड सिर्फ दे दूं, आप उससे पढ़ लें, तो फिर मेरे लेक्चर का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ. तो प्लीज आप मेरे लेक्चर को साथ साथ नोट किया करें. यहां तक मैंने क्लियर कर दिया है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाएगा स्टेक होल्डर के लिए. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. जी मेरे बच्चों, वर्ड आ गया बुक कीपिंग. एनी आइडिया? बुक कीपिंग, एनी आइडिया? साइंस के स्टूडेंट, if science students will participate, I will be very much thankful. Reporting, tracking, keeping the record. Good. Recording, tracking of accounts, recording, single entry records, record of transaction, maintaining recording day by day, collecting economic data of business. Okay, thank you so much. Time to explore. Bookkeeping is an activity concerned with the recording of financial data. तो इसका मतलब है मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं करता. आप लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मेहनती और बहुत टू दी पॉइंट लिखने वाले लोग हैं माशाल्लाह. तो इट मीन्स all of you are correct, alhamdulillah. Bookkeeping is an activity concerned with the recording of financial data. I would like to invite science students here that please note this, that bookkeeping is an activity concerned with the recording of financial data. In accounting definition, we studied accounting is an art of recording. पढ़ा था ना साइंस के स्टूडेंट्स को, स्पेशली मुखातिब कर रहा हूं प्यारे बच्चों, कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. इसका मतलब है बुक कीपिंग में भी रिकॉर्डिंग होती है. तो बेसिकली अकाउंटिंग में सबसे पहले, अकाउंटिंग परफॉर्म करते हुए सबसे पहला काम होता ही क्या है? बुक कीपिंग होती है. जब तक आप बुक कीपिंग नहीं करेंगे, आप अपने डेटा को समराइज करके अपने यूजर्स के सामने पेश नहीं कर सकेंगे. Yes, exactly. It is part of accounting. It is base of accounting. And in some books, I read that they write bookkeeping is a branch of accounting too. Yes, Abir, it is the first step of accounting. Yes, and I said कि मैंने कुछ बुक्स में ये पढ़ा है कि उन्होंने बुक कीपिंग को ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में भी शामिल किया है. कहा है कि अकाउंटिंग की अगर ब्रांचेस निकाली जाएं तो सबसे पहली ब्रांच बुक कीपिंग है. और मेरा ख्याल है आप अपनी बुक में चेक करें ना, पीटी वाला बुक रिपोर्ट, आप जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की है, दोज हु हैव परचेज द बुक, check it on the page number 2. In branches of accounting, you will find the first one is bookkeeping. Okay, so I think we have limited time. So the data relating to business operation in a significant and orderly manner, it covers procedural aspects of accounting work and embraces record keeping function. The most important thing is रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन. और आप सब ने यही कहा कि बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्ड. फातिमा, आप क्लियर है ना मेरा बच्चा? और भी जो साइंस के स्टूडेंट हैं प्लीज शेयर किया करें. कोई चीज समझ में नहीं आया तो बेफिक्र होके पूछें. ओके, वी शुड मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. देयर इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग. कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. why we are, what is the objective of bookkeeping, why we are maintaining, why we are recording
ट्रांजैक्शंस, बिकॉज बुक कीपिंग का जो बेसिक पर्पस है वो ट्रांजैक्शंस को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना है। जब तक आप ट्रांजैक्शन को कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आप उससे प्रॉपर रिजल्ट, you will not be able to get proper result from the bookkeeping। और बुक कीपिंग तो पहला स्टेप है। अब अगर आपने बुक कीपिंग ही प्रॉपर नहीं किया, आपने कंप्लीट रिकॉर्डिंग ही नहीं की ट्रांजैक्शंस की, तो इसका मतलब है बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्ड करना है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एस्टरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। उन ट्रांजैक्शंस का आपने इफेक्ट मालूम करना है। एसरटेनमेंट माने जो है वो डिटरमाइन करना भी होता है। एसरटेनमेंट मालूम करना, यस, कि आप फाइनेंशियल इफेक्ट मालूम करें उसका बिजनेस पर। वो जो ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ बिजनेस पर, उस ट्रांजैक्शन के होने से नहीं। अभी आऊंगा लेजर पर, लेकिन पहले इस बात को समझ लें कि वो जो ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन से किस किस चीज पे फर्क पड़ा। मैं साइंस के स्टूडेंट के लिए स्पेशली बोल रहा हूं ये जुमला, सही है? कॉमर्स वाले थोड़ा सा हौसला रखें। बिलफर्स, हम जो है अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद के लाते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं ऑन कैश। व्हाट वी आर डूइंग? शाह सलीम, थोड़ा सा सबर, जो मैं जुमला कह रहा हूं पहले उसको सुने। अभी मैंने अकाउंटिंग की कोई बात नहीं की, मैंने आपसे सिंपल एक ट्रांजैक्शन कही है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। यही कहा ना मैंने बुक कीपिंग की डेफिनेशन में। अब मैं वापस नहीं जाऊंगा डेफिनेशन पर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अप टू द मार्क थे, अप टू पॉइंट थे कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड बुक कीपिंग, जो कि फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का। इसीलिए बुक कीपिंग को हम बेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप जब रिकॉर्ड कर लोगे कंप्लीट ट्रांजैक्शन को, तो आप रिकॉर्ड करते हुए डिटरमाइन करोगे उसका फाइनेंशियल इफेक्ट, उसके असरात, कि वो चीज किस किस चीज को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। मैं साइंस वालों के लिए स्पेशली कह रहा हूं ये सेंटेंस। आफ्टर स्टार्टिंग बिजनेस वी परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹20,000। तो बताइए, फर्नीचर बिजनेस में आएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज? साइंस के स्टूडेंट प्लीज पार्टिसिपेट करें, बाकी खामोश रहे अगर तो बहुत थैंकफुल रहूंगा मैं उनका। ओके, थैंक यू सो मच। फर्नीचर इंक्रीज होगा। एंड व्हाट इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस एंड व्हाट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम बिजनेस? यस फातिमा, कैश। तो so it means alhamdulillah you are able to determine, to analyze the effect of transaction। एक ये मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी? कि आफ्टर स्टार्टिंग बिजनेस वी परचेज फर्नीचर ऑन कैश। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से एनालाइज किया। आपने कहा फर्नीचर बिजनेस में आएगा, इंक्रीज होगा, और कैश बिजनेस से जाएगा, डिक्रीज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। Bookkeeping is a process concerned with the recording of transaction only, but accounting is a process deals with summarizing of recorded transaction। शाज ने सवाल किया था, मैंने उनसे कहा था थोड़ा सा हौसला रखें। अब शाज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो जरा इस सेंटेंस को पढ़ लें, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें क्लियर हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। शाज सलीम साहब, ठीक है? क्या है कि बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ओनली। बुक कीपिंग में आप क्या कर रहे हो? सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और क्लासिफाई, बस, और कुछ नहीं कर रहे। जबकि अकाउंटिंग में आप उसे क्या कर रहे हो? समराइज कर रहे हो। आप उसको ऐसे एक जगह लाके जमा करके किसी के सामने पेश करोगे कि पढ़ने वाले को वो समझ आ जाए बआसानी, और उससे बिजनेस की पोजीशन उसे क्लियर हो जाए, उसे पता चल जाए कि आइदर दिस बिजनेस इज इन प्रॉफिटेबल कंडीशन और इट इज इन लॉस।
So the second point is financial position of the business cannot be ascertained through bookkeeping records. समझिएगा इस पॉइंट को. कहता है बिजनेस की पोजीशन नहीं जान सकते आप. किसकी मदद से? बुक कीपिंग की मदद से आपको बिजनेस की पोजीशन पता नहीं चलती. मैंने कहा था ना, एसर्टेन माने मालूम करना, जानना. फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कि व्हाट वी हैव टुडे, हाउ मच कैश वी हैव टुडे, हाउ मच अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स टू अस, how much amount we have to pay to our creditors, how much amount we have to pay to bank which we have taken previously as a loan. So it means बुक कीपिंग तो क्या है, सिर्फ रिकॉर्ड करने का नाम है ना. अब इससे कोई समरी तो बनती नहीं है. ये तो हमें बताएगी नहीं कि हमने किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने. यस, इन बुक कीपिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा इन रॉ फॉर्म. एग्जैक्टली महक आदिल. यानी आप समझ लें कि बस सिंपल वर्ड्स में कि हमने लिख लिया चीजों को. अब उससे रिजल्ट कैसे जनरेट होगा? हमने लिख लिया, हमने सामान खरीदा, हमने सामान बेचा, हमने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, हमने रेंट पे किया. We recorded all transactions which incurred in a business in a particular year. But when we summarize all those transactions and produce result, so here comes accounting. अकाउंटिंग इन्वॉल्व हो गई ना, अकाउंटिंग ही तो ये काम कर रही है. ओके, हुजैफा अदनान सेड लाइक एंड परचेज ऑर्डर. परचेज ऑर्डर तो डिफरेंट थिंग है. वो तो आप जब सामान खरीदते हैं तो आप बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो आप बनाकर भेजते हैं किसके पास? अपने वेंडर के पास, सप्लायर के पास. और फिर वेंडर सप्लायर उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपको उतना माल प्रोवाइड करता है. ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट है, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस है. लेकिन फिलहाल हम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड करना क्या है? रिपोर्ट कार्ड. यस, एग्जैक्टली आप कह सकती हैं सैयदा जहरा. तो मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं. बुक कीपिंग, बट अकाउंटिंग इज वे फ्रॉम विच फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस कैन बी ascertained. ठीक है, तारिक आजम साहब पूछ रहे हैं सर शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर, स्टेक नहीं है स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर में फर्क बताएं. यस हफ्सा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है. तारिक आजम साहब को कोई लिख के भेज दे भाई, यहाँ पे शेयर कर दे, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर का फर्क. मेरा ख्याल है आप क्लास के शुरू में मौजूद नहीं थे, मैंने शेयर होल्डर डिफाइन किया है क्लास के स्टार्ट में ही आज. बिल्कुल सही है. फर्स्ट स्लाइड में कौन सी, वो जो मेरी इससे पहले प्रेजेंटेशन चल रही थी उसमें मैंने शेयर होल्डर स्टॉक होल्डर का वर्ड डिफाइन किया था. स्टॉक होल्डर एंड शेयर होल्डर आर सेम, स्टॉक होल्डर एंड शेयर होल्डर आर सेम, बट स्टेक होल्डर, सही है, वो डिफरेंट है, याद रखिएगा. यस, शेयर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर. एग्जैक्टली. Now move to the next slide. There is again a difference between accounting and bookkeeping. Bookkeeping has no subfield, but accounting has several subfields like financial accounting, management accounting, etc. My dear students, bookkeeping की कोई फील्ड नहीं है. bookkeeping में सिर्फ आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन और बस, और कुछ नहीं करना. बट अकाउंटिंग में बहुत सारी फील्ड्स हैं लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब क्या होती है बताने लगा हूं, परेशान मत हो, अभी बताऊंगा. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू. अब तारिक आजम साहब ये कमेंट्स पढ़ें, उन्हें पता चल जाएगा, वरना मैं एक ही बात 10 बार रिपीट करता रहूंगा, वक्त जाया होगा. मुझे आगे बढ़ना है चीजों को लेके. बुक कीपिंग हैज नो सब फील्ड बट अकाउंटिंग हैज सेवरल सब फील्ड. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब क्या है? आइए इस पे आप थोड़ा सा बात करते हैं जल्दी से. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, अचानक ये कैसे आ गया? तो मेरे बच्चों दीज आर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. और मैंने जैसे कि बताया इन योर बुक ऑन पेज नंबर 2, द फर्स्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज हैज रिटन, व्हाट इज रिटन? bookkeeping. Bookkeeping is also a branch of accounting, but here we are starting branches of accounting from financial accounting. मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में जल्दी जल्दी कहूंगा. द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू ascertain the true result, profit or loss of the business operations during a particular period of time and to state the financial position of the business on a particular point of time. क्या मतलब हुआ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का असल काम क्या होता है प्यारे बच्चों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का असल काम है बिजनेस की सही प्रॉफिट और लॉस मालूम करना एक पर्टिकुलर पीरियड का.
ये नहीं कि जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ 5 साल से आज तक 5 साल का प्रॉफिट लॉस, नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, टाइम टाइम पीरियड के बारे में जब पढ़ाऊंगा। तो लास्ट 3 मंथ्स का, लास्ट मंथ का, लास्ट 1 ईयर का, 6 मंथ का, 9 मंथ का, ठीक है। हम प्रॉफिट और लॉस मालूम करते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का। और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताने में मदद करती है कौन सी अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर दोबारा कह रहा हूं एक बार, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हमें किस चीज में मदद करती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन related to profit or loss of the business and related to financial position। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मैंने बताई थी ना, कि बिजनेस में आज हमारे पास क्या मौजूद है, बिजनेस में ओनर की कितनी इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस में हमने लोन कितना लिया हुआ है, कितनी अमाउंट हमें किसी को पे करनी है, कितनी अमाउंट हमें किसी से रिसीव करनी है, फर्नीचर हमारे पास कितने का मौजूद है, हमारी बिल्डिंग की वर्थ कितनी है, ठीक है। ये सब किन चीजों में आता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। जबकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि अबीर साहब ने लिख के भेजा, वो क्या है? उसमें बिजनेस के तमाम एक्सपेंस और रेवेन्यूज आते हैं जिससे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस मालूम किया जाता है। Cost accounting. The main objective of cost accounting is to determine the cost of goods manufactured और प्रोड्यूस बाय द बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? बहुत सिंपल वर्ड्स में, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़नी। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग कब पढ़नी है? व्हेन वी विल स्टडी अबाउट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन से होते हैं? जो प्रोडक्ट को बना के बेचते हैं। तो जो प्रोडक्ट को बनाएगा, उसे प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट को कंप्यूट करने में, कॉस्ट को कंप्यूट करने में, मालूम करने में जो अकाउंटिंग मदद करती है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उस अकाउंटिंग को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, या इसे यूं भी पढ़ा जा सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस। ठीक है प्यारे बच्चों, आप क्लियर हैं यहां तक? कॉस्ट अकाउंटिंग, अब ये अलग अलग फील्ड्स बनती हैं। अगर आपने आई कैप का नाम सुना है, तो आई कैप जो है वो स्पेशलाइजेशन कराता है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंसी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप ICMAP इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं, वहां से आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आप जैस CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है था। और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो फाइनेंशियल साइड पे आप जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये बात दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कुछ भी आप परसेप्शन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं आती या कॉस्ट अकाउंटेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं आती, आती है। बट स्पेशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एक डर्माटोलॉजिस्ट, एक जो है जनाब डेंटिस्ट, ठीक है, एक न्यूरोसर्जन, हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है ना, होते सब डॉक्टर है मेरे बच्चों। तो इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक स्पेशलाइजेशन है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग एक स्पेशलाइजेशन है। आई होप आप सबको मेरी बात क्लियर है। द लास्ट वन इज मैनेजेरियल अकाउंटिंग। व्हाट इज दिस? इट इज फॉर टॉप होल्डर्स, it is for top position, it is for top management. Managerial accounting, word managerial is clearly stating that this type of accounting is going to help managers, directors. The object of this accounting is to communicate the relevant information periodically to the management of the business to enable it to take suitable decisions. वो अकाउंटिंग जो डिसीजंस को लेने में हेल्प करे, डिसीजंस लेने में, किन को? एक्सटर्नल की बात नहीं हो रही है, एक्सटर्नल यूजर नहीं होंगे यहाँ पे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किन के लिए? मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट कौन होती है? इंटरनल यूजर या एक्सटर्नल यूजर? मैनेजमेंट क्या होती है? इंटरनल यूजर या एक्सटर्नल यूजर? इंटरनल। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर को हेल्प करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल मैनेजमेंट को बताती है कि यू शुड प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट और यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट एंड सेल इट एज इट इज। बहुत सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूं दोबारा भाई, मैनेजेरियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट को ये फैसला करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइड करती है कि आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करके सेल आउट करें या आप किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें और फिर मार्केट में सेल करें। तो दोनों से क्या होगा? दोनों से आपको कितना, किस क्या काम करने से प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्या काम करने से प्रॉफिट कम होगा। तो इससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिलती है। आपको दो अलग अलग सिचुएशंस नजर आ रही होती हैं, दोनों के ड्रॉबैक्स, दोनों के फायदे नुकसानात आपके सामने होते हैं।
कहाँ पे आप ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे, कहाँ पे कम। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग का दूसरा नाम मैंने कॉल किया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका थर्ड नेम है डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग, यानी ये डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी से निकला। स्ट्रेटेजी आप हिकमत अमली बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो स्ट्रेटेजिक अकाउंटिंग भी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं, डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग भी कहते हैं। जबकि फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के बस वही नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को क्लियर कर लिया है। अब हमारे पास तकरीबन 10 मिनट्स हैं, ठीक है। क्लास खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग चलने देता हूँ। एक छोटी सी वीडियो है, अगर आप लोगों को देखने का मूड है तो देख लें, या फिर कल दिखाऊं, जैसे आप लोग चाहें। बड़ी अच्छी वीडियो है, आई होप आप उसको एंजॉय करेंगे। अगर आप कहते हैं आप थक गए आज। जी एमन प्लीज। समर आसिफ सेट सर कल वीडियो देखेंगे, शाह सलीम सेट कल। ओके। अब इस 3 लोगों ने कह दिया कल। अभी आपके पास 10 मिनट्स है। ओके, फिर आप लोग ऐसा करें, ब्रेक ले लीजिए। अगर आपने नाश्ता वगैरह नहीं किया, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, जाइए। और फिर आफ्टर 7 मिनट्स 8 मिनट्स जो है वापस आ जाइए। असल में कुछ बच्चे कह रहे हैं तो मैं सबका ही अदब और एहतराम करता हूँ। बेकार में बेचारे अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा तो मुश्किल में आ जाएंगे मेरी वजह से। मशहूद भाई भी हमारे कह रहे हैं सर कल, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज आप लोग थोड़ा सा आराम कर लें और इसको प्लीज पढ़िएगा जरूर। वीडियो में बस इंशाल्लाह फौरन, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फौरन अभी अपलोड करता हूँ। आप आफ्टर 12 o'clock क्लासेस खत्म होने के बाद आफ्टर 12:30 वीडियो को एक बार देखा करें इत्मीनान से, पुरसुकून अंदाज में रोक रोक कर, और चीज़ों को समझा करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे मेरे पैडलेट पे भी वहाँ जाके कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे गूगल क्लासरूम में भी वहाँ कमेंट कर सकते हैं। जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप ईमेल कर सकते हैं, जिस तरह बेहतर लगे। थर्ड डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ओके, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं एमन, और फिर उसके बाद आपको बता देता हूं मेरा बच्चा। ओके क्लास, जो लोग जाना चाहते हैं बिल्कुल चले जाइए, उन्हें मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह, ठीक है। और मैं एमन को चीजें कुछ बता देता हूं। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह प्यारे बच्चों। एमन मैं अभी हूँ क्लास